Very good afternoon, very good evening, sorry, to everyone. After huge succession of National FinQuiz competition, Tim Mudra is here with a fabulous webinar on decrypting cryptocurrency. I'm Ansi Bari. I would like to heartily welcome you all to in this event. And for today's event, we have with us Mr. Shreyans Shah. Sir is a certified financial planner and he has worked in a brokerage firm for a year while he was in college and where he founded your FinMan with his batchmate in year of 2020. He helps in simplifying financial planning for the youths of India. So on the behalf of Mudra, the Finance Club of DPPG, we warmly welcome you, sir. Let's explore the descripting cryptocurrency with sir. Over to you, sir. Hello. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. First of all, you can call me Shreyans. I'm no sir. I'm just 22 as well. I'm just young as you guys. So please, I'm just getting awkward with this respect. Okay. So I'll present. I'll start with just. Okay. Can you guys see the presentation? Yes, sir. Yes, sir, it is visible. Okay. So first of all, thank you all for joining this session. I welcome you all. Where today we are going to decrypting the cryptocurrencies, the ambiguous and the confusing world of cryptocurrencies. I'm sure you all have been hearing these words: Bitcoin, Ethereum, cryptocurrencies, Dogecoin, altcoin, and every other thing that has been related to crypto, NFT as well. So today we are going to just shed some light. I'm going to shed some light on little bit of these aspects, and I'm sure that you will go home with some knowledge about cryptocurrencies. A little bit of disclaimer I want to share with you is that I'll be conducting this session in a big bit of English, a bit of Hindi, और आई एम श्योर गुजराती भी आती होगी सबको. तो allow me, if anybody is uncomfortable with any of the languages, you can tell me and I can switch in any of the languages. So are you okay with that? Is everybody okay with that? Yes, sir. Okay. So let's just start. Okay. So the world of cryptocurrencies has been increasing day by day. Day by day, many more cryptocurrencies are launching in this world, and we are just getting confused more and more with one more cryptocurrency and another. So I'm sure you will also be knowing one or two, or let's say four or five, but you won't be knowing all the cryptocurrencies in the whole. Talking about me, I also don't know, and also don't know all of these cryptocurrencies. I know four or five about it, which are some famous ones. That is Bitcoin, Ethereum, Doge, Litecoin, and the Litecoin. Okay, so the world has been getting bigger and bigger, and it is also getting more confusing. So there's a need to understand cryptocurrencies, to understand what's the technology behind it, और इनके पीछे क्या मोटिवेशन है, जो क्रिप्टो करेंसीज बना रहे हैं, ये लोग जो क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च कर रहे हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज के नेटवर्क को चला रहे हैं, उनके मोटिवेशन क्या है, क्या चीज़ उनको फ्यूल कर रही है क्रिप्टो करेंसीज चलाने को. तो वी विल बी लुकिंग इनटू दैट, बट let's just take a step back, or let's go through how this world started, and let's take a look कि cryptocurrencies का जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई थी. So it started all in 2008 when bitcoin.com domain was registered on 18th of August. A person named Satoshi Nakamoto published a paper on bitcoin.org
titled Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, where the research paper talked about how Bitcoin can challenge the current fiat currencies that has been in circulation, और अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो प्रेजेंट है इस वर्ल्ड में, लाइक हैश, क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन, वो सब को मिलाकर एक क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट की जाती है विच कैन बी यूज्ड फॉर पीयर टू पीयर ट्रांसफर. Then in 2009, Satoshi Nakamoto sent some bitcoins to his co-creator. Cryptocurrencies were created by a group of people. पहला बिटकॉइन का जो रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन है वो अपने क्रिएटर हाल फिनली को बिटकॉइन सेंड किए. देन द नंबर ऑफ बिटकॉइन वाज 10 बिटकॉइंस जो उसने सेंड किए 2009 12 जनवरी को. फिर 2010 में ऑफिशियल बिटकॉइन, लेट्स से कि कोई भी करेंसी होती है उसके पीछे एक मॉनेटरी वैल्यू होना जरूरी है. लाइक आई से 500 की नोट है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज उसको एक 500 रुपए की वैल्यू दी है. अगर वो गवर्नमेंट आज बोल रही है कि वो 500 की नोट 0 रुपीज की हो जाएगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं. सो अ करेंसी हैज सम वैल्यू जिससे आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हो, किसी को पेमेंट दे सकते हो या फिर किसी तरह वैल्यू रिसीव कर सकते हो. तो द फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन जहाँ पर बिटकॉइन को एक मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड की गई थी, दैट वाज इन 2010 व्हेन द बिटकॉइन यूजर send someone 10,000 bitcoins for buying him 2 pizzas. 2 pizzas के लिए एक पर्सन ने 10,000 बिटकॉइन सेंड किए. एंड इमेजिन अगर आज के वैल्यू पर वो 10,000 बिटकॉइंस वैल्यू किए जाए, दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पिज्जा इन द रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री. आज उससे महंगा कोई पिज्जा आज तक नहीं हुआ है. तो 2010 पे एक पहली ट्रांजैक्शन जिसको बिटकॉइन से एक मॉनेटरी वैल्यू असाइन की गई थी. 2011 से बिटकॉइंस जो थे, बिटकॉइन वाज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी. दैट 2011 से राइवल क्रिप्टो करेंसीज इन्वेंट होना शुरू हुई. द फर्स्ट बीइंग नेम कॉइन, लाइट कॉइन, स्विफ्ट कॉइन. इथेरियम वाज अ बिट लेटर ऑन. इथेरियम तब तक रिलीज लॉन्च नहीं हुई थी. तो 2011 में लाइट कॉइन, नेम कॉइन, स्विफ्ट कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज को लॉन्च किया था. 2012 से in the year 2020 2012 cryptocurrencies began to put their mark in our conversation. मतलब वो रोज बरोज की बातों में इन्वॉल्व होना शुरू हुआ कि व्हाट इज दिस क्रिप्टो करेंसी, ये चीज़ क्या है, कोई मुझे समझा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है. व्हेन क्रिप्टो करेंसीज का पहला जिक्र एक अमेरिकन शो द गुड वाइफ में हुआ था इन द 3rd सीजन. तो कल्चर वहाँ से शुरू हुआ, क्रिप्टो करेंसीज वहाँ से चर्चित होने लगी. Then in 2013 a thing happened where थाईलैंड जो कंट्री है उन लोगों ने क्रिप्टो बैन कर दिया. लाइक और एनी अदर क्रिप्टो करेंसीज. चाइना ने भी अपनी, चाइना की जो आरबीआई है, द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उससे इंस्टीट्यूशंस को ट्रांजैक्ट एनीवन who is transacting in cryptocurrencies. जर्मनी ने भी सेम चीज किया, बिटकॉइन डिनाई कर दिया. बट while the world was banning cryptocurrencies, the other side in North America, कनाडा में बिटकॉइन का एटीएम लॉन्च किया गया. एंड व्हाट वाज दैट, आपको एक कोड स्कैन करना होगा एंड विद इन सम फ्यू सेकंड्स और मिनट्स आपके वॉलेट में बिटकॉइंस डिपॉजिट कर दिए जाएंगे. एंड द फेमस वन डॉजकॉइन 2013 में लॉन्च हुआ था. देन इन 2014 a trading exchange, as you know, for any asset to trade there should exist a market. क्रिप्टो करेंसीज में भी सेम है. क्रिप्टो करेंसीज में जो ट्रेडिंग एक्सचेंज था वो जापान में एक स्पेसिफिक ट्रेडिंग एक्सचेंज बैंकरप्ट हो गया. बैंकरप्ट होके क्या हुआ कि जहाँ जो भी उस जगह पर ट्रेड कर रहे थे बिट क्रिप्टो करेंसीज, वो सबके पैसे वहाँ पर डूब गए. एंड इन द सेम ईयर माइक्रोसॉफ्ट started allowing Microsoft users to purchase Microsoft games with Bitcoin. And in 2015, the next
cryptocurrency, which is Ethereum. Ethereum was launched in 2015, and Coinbase. Like in India, we have CoinSwitch, WazirX, Binance. There's a trading exchange in America, in US, which is Coinbase. So Coinbase, which is a startup, Coinbase raised $75 million in funding round. तो वो भी एक क्रिप्टो करेंसी की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा स्टेप था कि ट्रीएक्स ट्रेडिंग एक्सचेंज को इतने सारे फंडिंग मिल रही है. देन इन 2016 बिटकॉइन एटीएम्स, जो हमने पहले कनाडा से शुरू हुआ था, बिटकॉइन एटीएम्स, उनके फिजिकल प्रेजेंस धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रही थी. जस्ट इन अ ईयर 2016 के शुरुआत में 500 बिटकॉइन एटीएम्स थे, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वो नंबर ऑफ एटीएम्स बढ़ के अराउंड 900 हो गए. उबर ने भी अर्जेंटीना में अपने राइड की फीस पे करने के लिए बिटकॉइन अलाउ कर. इन द सेम ईयर स्विस की जो नेशनल रेलवेज है, उन लोगों ने भी बिटकॉइन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया. Then in 2017, a thing happened which some of you might don't know, is that the original Bitcoin that was launched in 2018 was split into two cryptocurrencies. एक ही बिटकॉइन के दो एग्जिस्टेंस हो गए थे, और उस पर आज का जो हम बिटकॉइन ट्रेड कर पा रहे हैं वो एक दैट इज नॉट द ओरिजिनल वन, बट इट इज अ सब्सिडियरी ऑफ द ओरिजिनल बिटकॉइन. जो ओरिजिनल बिटकॉइन में से टू बिटकॉइन बने थे, वन इज बिटकॉइन एंड अनदर इज बिटकॉइन कैश. देन जापान ने भी एक लॉ पास किया कि बिटकॉइन यूज करना अलाउ करेंगे. बिटकॉइन वुड बी एक्सेप्टेड एज अ लीगल टेंडर इन जापान. एंड इन 2018 द टोटल क्रिप्टो करेंसीज मार्केट, लाइक बिटकॉइन की जो वैल्यू है, बिटकॉइन के जो नंबर ऑफ करेंसीज अलाउड है, इथेरियम है, डॉज कॉइन है, जो भी है वगैरह वगैरह, जो भी क्रिप्टो करेंसीज है, दैट टोटल उनकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू 824 बिलियन तक राइज हो गई थी, क्लोज टू ऑलमोस्ट $1 trillion. And that is the highest that the cryptocurrencies have ever reached. That is 824 billion dollars of market cap. और उसी सेम ईयर में 2018 में एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, जब 824 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप टच हो गई थी जनवरी में. उसके बाद मार्च अप्रैल में ही उस पूरी क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट का 75% मॉनेटरी वैल्यू पूरा क्रैश हो गया था. मतलब सबके पैसे धुल गए थे. अगर आपके पास 100 रुपए के कोई भी क्रिप्टो करेंसी थी, ऑलमोस्ट 75 रुपीज डिक्रीज हो गया था, और आपके पास सिर्फ 25 रुपए बचे थे. और उसी ईयर पे सैमसंग ने एक अनाउंसमेंट की कि वो बना रहे होगा, जिससे माइनिंग आसान हो जाएगी. एंड यू नो ऑल अबाउट 2020 से इंडिया में भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज का कल्चर धीरे धीरे शुरू होने लगा. एंड देन रेस्ट इज द फ्यूचर, कि सबको पता है कि डॉजेकॉइन कैसे एकदम ऊपर चला गया था, फिर बिटकॉइन भी एकदम तकरीबन 50 लाख के आसपास आ गया था. फिर एवरीथिंग जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड था वो सब was in the bull market, all because of a single person, that is Elon Musk. And in 2021 Tesla started accepting bitcoins, then abruptly stopped accepting bitcoins, which fueled the next biggest crash of the cryptocurrency market. जैसे कि बिटकॉइन की वैल्यूज भी बहुत, और सारी क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यूज भी बहुत गिर गई थी. सो this is how Bitcoin has progressed through years. This is how cryptocurrencies have progressed through years. And here we are, where we are today to learn something about cryptocurrencies. Let's just take the total number of cryptocurrencies right now. So 2008 में तो पहली क्रिप्टो करेंसी थी, दैट इज बिटकॉइन. देन धीरे धीरे 2013 से क्रिप्टो करेंसीज स्टार्ट हो गई. देन 2013 में सिर्फ 66 अलग क्रिप्टो करेंसीज थी, 2014 में 506, एंड सो ऑन एंड सो फॉर. अभी लेटेस्ट नंबर के हिसाब से in Feb 2021 there were 4,501 different cryptocurrencies that are being circulating in the market. और ये चीज़ है, ये नंबर्स है जो ऑफिशियल्स, मतलब जो सर्कुलेशंस में है. दैट वुड बी एन नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जो लोगों ने बनाकर अभी चल नहीं रहे, या फिर दैट आर इन द मेकिंग.
So here we are where we are. We have 4,500 cryptocurrencies, 4,500 different cryptocurrencies existing in the world. And just for comparison, currently वर्ल्ड में जो डॉलर्स रुपए जैसी अलग अलग लीगल करेंसीज होती है जो नेशंस में एक्सेप्ट होती है, their number is 164, just 164, जबकि क्रिप्टो करेंसीज अलग अलग प्रकार की 4,501 है. Now, before we move into the details, let me introduce myself. Although Mansi has done a very well job in introducing me, my name is Shreyan Shah. I'm 22 years old and I'm finance enthusiast, as you might have guessed it. I am CFP qualified. I am also a BCom graduate, and I founded Your Finman in 2020 with my bachelor. A bit introduction about Your Finman. It was founded by me and my batchmate. We started out in March 2020 with an Instagram account. Then we moved on to our website, where we are currently, where our current online presence is. Then we started a weekly newsletter in November that goes out every Sunday to our subscribers, those who have subscribed it, and a little bit what we are currently doing right now. We do a weekly newsletter that is FinMail. We send FinMail to our subscribers every Sunday. Then also we cover FinScoop, a report that summarizes all the important market events and finance events all around the world. We publish blogs on our website. We do live sessions as this one. We also post reels, post and memes, can't skip. So what is on the session today? So you can take a look at the session that we are going to discuss. We will be covering every bit of it little by little, because the cryptocurrency world is so in detail, it has so much depth that we can't cover everything in a 1 hour session. So I'll be touching a bit of everything in this session. So here we are, here it is what we are going to discuss. So the first thing we are going to discuss is how money has evolved through centuries and through decades, and how it has reached to cryptocurrencies. Then we will take a look what cryptocurrency actually means. We will look at the definition, the theory version of it. We will be covering the basics of Bitcoin, because the first cryptocurrency was Bitcoin, so we definitely need to cover Bitcoin in detail. Then we'll be covering the blockchain technology, the main center fold of the Bitcoins, how Bitcoins work, which is the blockchain technology. Then we will be discussing a concept called mining, which is related to cryptocurrencies. And this is the way how cryptocurrencies come into circulation. We will be then taking a look at what are the alternatives of Bitcoin right now, what are the alternatives available. Then we would be trying to search the answer कि क्रिप्टो करेंसीज इतनी वॉलेटाइल क्यों है, कि एक ही दिन में 25% गिर गई, दूसरे ही दिन 10% बढ़ गई, फिर अगले तीसरे दिन वापस 20% बढ़ गई, घट गई. Then why it is so damn volatile. Then we would be covering कि what one should look into while investing in cryptocurrencies. कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी समझ के उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना है, तो what things you should take care of while investing in cryptocurrencies. Then we will be concluding this session, and I'll be then taking your questions, and we will end this session on that note. So let's start this session in detail, and परंपरा को मानते हुए no session can be started without saying चलिए शुरू करते हैं. So let's just start. Okay. So क्रिप्टोकरेंसीज के पीछे, क्रिप्टोकरेंसीज का जो इन्वेंशन हुआ है उसके पीछे मोटिवेशन क्या था? What fueled Satoshi Nakamoto in inventing Bitcoin as in cryptocurrencies? तो वो समझने के लिए we should take a look at how money has evolved throughout centuries, throughout decades. कि कैसे हम पहले बार्टर सिस्टम में थे, फिर कैसे धीरे धीरे पेपर मनी में आने लगे, और फिर कैसे हम क्रिप्टो करेंसीज में अभी इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट ऑन दैट. सो क्रिप्टो करेंसीज के इन्वेंशन के पीछे जानने के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट वी सी द इवोल्यूशन ऑफ हाउ मनी एंड करेंसी हैज़ इवॉल्व्ड. सो
The first and foremost recorded history of value of exchange was the barter system. I'm sure you all might know what barter system is, wherein to provide each other value, जैसे कि एक किसान को एक हथौड़ी चाहिए और एक लुहार को कुछ अन्न चाहिए, तो कुछ दाने चाहिए, तो वो दे वुड एक्सचेंज बोथ ऑफ देम इन बिटवीन, और दे वुड फाइंड अ वैल्यू कि भाई 500 ग्राम गेहूं के पीछे एक हथौड़ी मैं तुझे दे दूंगा, तो दे फाइंड अ वैल्यू बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड दे एक्सचेंज दिस थिंग्स. बट वो चीज़ एक्सचेंज करने में ज़रूरत क्या थी, वो चीज़ बार्टर सिस्टम से हम कैसे फिर नेक्स्ट इवोल्यूशन में पहुंचे. वी वुड बी लुकिंग कि एक मनी सिस्टम जो थी, जैसे कि बार्टर सिस्टम है, पेपर करेंसी है, वो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कैसे शिफ्ट होती है. तो दैट इज बिकॉज देयर इज सम limitations to one method, one history that has been followed, कि एक कुछ खामियां होगी उसमें जिसकी वजह से हमको दूसरे कोई ऑप्शन पर शिफ्ट करना रहता है. तो then came there were some difficulties in barter system which we'll be discussing in the next slide. तो barter system से हम शिफ्ट हुए commodity money. Commodity money is just similar but a little bit different. कैसे little bit different? Like let's say India is a cattle rich country. Like हमारे यहाँ गाय, भैंस, बकरी और वगैरह एनिमल्स जो ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं. सो वी आर अ कैटल रिच कंट्री. तो इंडिया में एक ऐसी चीज़ है जो एक एक्सेसिव प्रोपोर्शन है और जो किसी और जगह भेजी जा सकती है. लाइक इन ब्राज़ील में शुगर कैन सरप्लस है, तो वहाँ पर गन्ने ज़्यादातर उगाए जाते हैं, तो वहाँ पर गन्ने शुगर प्लस है, एक्सेसिव है. तो उस कंट्री की एक एक्सेसिव चीज़ लेके दूसरी कंट्री के बीच कुछ ट्रांसफर करके, कुछ एक्सचेंज करके वो कमोडिटी मनी पाया जाता है. अ फैक्ट, रोमेनियन वाज अ सॉल्ट रिच कंट्री. वहाँ पर ह्यूमिडिटी की वजह से सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे. The word we use currently, salary, जो which we use, salary, was derived from the word salt. से सैलरी आई है बिकॉज ऑफ सरप्लस कंट्री थी, तो उन लोगों को पैसे की जगह सॉल्ट दिया जाता था सैलरी में, कि ये नमक है, तुम्हारे एक महीने की नमक की जरूरत, ये तुम्हारी सैलरी में दिया जाएगा. तो दिस इज हाउ कमोडिटी मनी वाज रिलेशन. एंड केम दी मेटल मनी. मेटल मनी क्या है बेसिकली, कि आयरन ले लो, कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, वो कॉइन्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने में काम आते थे. लाइक हमारे यहाँ पे सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा, तो वो दैट इज व्हाट मेटल मनी इज. की एक सिमिलर फॉर्म में ढाल के उसको सर्कुलेशन में लाया जाए, जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मेटल मनी एक्सचेंज करके वैल्यू भी एक्सचेंज कर सकते हैं. एंड केम द पेपर मनी. इट इज वी आर यूजिंग इट राइट नाउ, कि एक नोट दी जाती है हमको और उसको कहा जाता है कि दैट इज इसकी वैल्यू अभी 500 रुपये है, इसकी वैल्यू 1000 रुपये है. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिएट करेंसी, क्योंकि इसके कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है. अगर आज 500 रुपये का वो 500 रुपये इसीलिए रखता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उसको कहती है कि इसकी वैल्यू 500 रुपये की है. लाइक यू ऑल नो 2016 में जो हुआ कि विद इन मिनट्स एक करेंसी की टोटली इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाती है, कि कल से बोल दिया कि भाई भूल जाओ ये कि ये 500 रुपये की नोट है या 1000 रुपये की नोट है, देन इट गोज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस. सो दिस इज व्हाट फिएट करेंसीज, की उसकी वैल्यू इसीलिए है क्योंकि इसको बैक करने वाली गवर्नमेंट यह कहती है कि इसकी वैल्यू है. एंड टू डिक्रीज द पेपर, टू डिक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ पेपर मनी, हमने धीरे धीरे डिजिटल प्लास्टिक मनी में शिफ्ट किया, लाइक नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स. बट इट इज नॉट रियली एन ऑल्टरनेटिव बट एन सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इट, कि अगर वो एग्जिस्ट करेगा, पेपर मनी एग्जिस्ट करेगा, तो ही प्लास्टिक मनी एग्जिस्ट करेगा. एंड देन केम द क्रिप्टो करेंसीज. तो कुछ तो खामियां होगी इन चीज़ों में, जैसे जो हमको एक चीज़ से
limitations of each and every circulation. तो बार्टर सिस्टम में क्या लिमिटेशंस थी? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. व्हाट इज इट? कि अगर मुझे चावल चाहिए और आपको गेहूँ चाहिए, तो वो मुझे कितने चावल देने पड़ेंगे, आपको कितने गेहूं देने पड़ेंगे, ताकि हम दोनों को इक्वली किसी का फायदा या नुकसान ना हो. तो देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कोई कॉमन बेस नहीं था जिसके मुताबिक से हमें पता चले कि अच्छा ओके 500 ग्राम चावल के सामने 600 ग्राम गेहूं, इट इज इक्वल. और दूसरा लिमिटेशन ये है कि द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस. ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अगर मुझे चावल चाहिए तो उसको भी गेहूं चाहिए ही होंगे, उसको कुछ और चीज होगी. लेकिन अगर मेरे पास चावल के अलावा कुछ और नहीं है तो आई विल हैव टू लुक फॉर समवन एल्स जो मुझे चावल के सामने गेहूं देने के लिए तैयार है. तो देयर वाज अ नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस, जो बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ी लिमिटेशन. द थर्ड इज इनडिविजिबल गुड्स. इनडिविजिबल गुड्स क्या है कि अगर मेरे पास लेट सपोज एक गाय है और आपके पास चावल है, तो मेरी गाय की वैल्यू देने के लिए आपको कितने सारे चावल देने पड़ेंगे? बहुत सारे. अगर आपको इतने सारे कमोडिटी को डिवाइड कर सकता हूँ, प्रोपोर्शनेटली थोड़ी देख सकता हूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज द लिमिटेशन व्हिच इज इंडिविजिबल गुड्स. एंड द फोर्थ थिंग इज प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज. मैंने एक्सचेंज तो कर लिया, मैंने ब्रेड एक्सचेंज कर लिया, फिर अंडे एक्सचेंज कर लिए, तो वो अंडे की भी एक लाइफ है, शेल्फ लाइफ. वो अगर वो मैं यूज नहीं कर पाएगा तो दैट वुड बी वर्थलेस फॉर मी, राइट? नाउ व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ कमोडिटी मनी? तो कमोडिटी मनी भी मैंने जैसे कहा बार्टर सिस्टम की थोड़ा ही अलग है, बट देयर वाज वन कॉमन कमोडिटी इन बिटवीन. तो डिफिकल्ट टू स्टोर. लेट सपोज सॉल्ट. तो सॉल्ट है तो इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर इन रेनी सीजन. अगर कहीं पे बाहर रख दिया तो दैट वुड कन्वर्ट इनटू सॉल्टी वाटर और उसको तुम उपयोग नहीं कर पाओगे. डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. अभी कैटल की एग्जांपल ले ले तो how would I transfer 1 or 2 cows to Russia, to Romania? It is not possible, right? So, and the third thing is not acceptable everywhere. अभी जैसे हमने पहले ब्राज़ील का एग्जांपल लिया था, एंड अगर इंडिया और ब्राज़ील के बीच एक्सचेंज करवाना है तो इंडिया भी शुगर केन सरप्लस कंट्री है. तो इंडिया के पास भी शुगर कैन है, ब्राज़ील के पास भी शुगर कैन है, तो उनको शुगर कैन चाहिए नहीं और हमको मीन कि अगर ब्राजील के साथ हमें कुछ एंटी प्रॉब्लम ऑफ पेरिशेबल गुड्स आल्सो एग्जिस्ट हियर. मेटेलिक मनी की लिमिटेशंस क्या है? डिफिकल्ट टू सॉल्व ऑफ कोर्स. अगर कोई गोल्ड की सिक्के हैं मेरे पास और अगर मैं अपने घर पर रह रहा हूँ तो दैट वुड बी थेफ्ट चांसेस, रिस्क ऑफ थेफ्ट कि कोई आके ले गया. डिफिकल्ट वो, और क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में है तो एक लिमिट आ जाती है कि पर नहीं रहता. ज्यादा होते हैं तो इट वुड बी नॉट पॉसिबल कि एक जगह से लंबी डिस्टेंस तक वो एक साथ कैरी कर सको. एंड द थर्ड लिमिटेशन इज नो कॉमन बेस. अभी इसका लिमिट एज इन की so gold is right, and whenever I get shortage of it कि मतलब मुझे अगर 100 कॉइन है और वो खत्म होने जा रहा है तो आई वुड ट्राई कि वो एक सिक्के को मैं पिघला कर वापस 2 सिक्के बना लूं और वही 2 सिक्के मैं वापस यूज कर लूं. तो दैट वुड बी चांसेस कि मैं वो यूज कर सकूं. और उसी के लिए एक सिस्टम आई थी हमारे इंडिया में, जैसे कि चक्रवर्ती अशोक के एम्पायर में बात करें तो चक्रवर्ती अशोक का एम्बलम लगाते थे हम सिक्के पे कि ये चक्रवर्ती अशोक के एम्पायर की मुद्रा है. तो इसकी कोई वैल्यू है, इसकी कोई अथॉरिटी है, मतलब इसमें कुछ और गलत नहीं हो सकता. तो वो क्या हो गया कि वो एक सेंट्रल हो गया, कि वो एक किंग के पास ही पूरा कंट्रोल आ गया. तो मेटालिक मनी वाज सेंट्रलाइज्ड इन सर्टेन टर्म्स. एंड नाउ व्हाट वी यूज इज पेपर एंड फिएट मनी.
जैसे मैंने कहा, पेपर और फिएट मनी का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू इसीलिए रहता क्योंकि वो एक उसके पीछे जो गवर्नमेंट है उसको बैक करती है। नेक्स्ट थिंग इज अनलिमिटेड सप्लाई। मैं जब भी आऊँ, कोई गवर्नमेंट जब भी जाए कितना भी पैसा छाप सकती है, दैट इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट दैट एग्जिस्ट इन पेपर एंड फिएट मनी की इतनी करेंसीज प्रिंट कर सकते हो जब जरूरत पड़े। और हमें एक अंदाज नहीं रहता कि एक्चुअली हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है। वाई? बिकॉज द मोमेंट इट स्टार्ट सर्कुलेटिंग इन लो सप्लाई, government would try to print something, government try to print the currency and increase the supply, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बूस्ट होता है। हमारी जो चीज़ है, जो भाव बढ़ रहा है, दैट इज वन मेजर रीजन कि करेंसीज की सर्कुलेशन भी बढ़ रही है। एंड सेंट्रलाइजेशन इज द बिगेस्ट इशू कि एक गवर्नमेंट बोल रही है, एक गवर्नमेंट के पास ही पूरा कंट्रोल है करेंसीज का, which is the biggest problem and which is the biggest fueling motivation factor behind finding the cryptocurrencies, or can be worthless anytime. We all know about it. So these were some limitations कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है, कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है, कोई भी जाके कभी भी कुछ बंद कर सकता है। सो दिस वेर सम मोटिवेशंस दैट फ्यूल्ड दैट, जिसकी वजह से बिटकॉइन, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज को आना पड़ा। तो सातोशी नाकामोटो ने भी एक अपना रिसर्च पेपर इश्यू किया है, उसमें भी उसने वही बात की है कि आप रिसर्च पेपर www.bitcoin.org पे जाके देख सकते हो एंड यू कैन रीड इट कम्प्लीटली, जहाँ पर उसने सेम बात की है कि देयर इज अ सर्टेन नीड कि एक अथॉरिटी जो है करेंसीज की, वो उसको मिटाया जाए और एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक्सेप्टेबल करेंसीज क्रिएट की जाए जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल ना हो, जो सिर्फ उसको यूज करने वाले सब यूज कर रहे हो। सो दिस इज हाउ द क्रिप्टो करेंसीज वाज बोर्न। रिसर्च पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन के बारे में। एंड देन लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसीज का थियरी डेफिनेशन क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी इज अ टाइप ऑफ डिजिटल एसेट और करेंसी is used as a medium of exchange to transfer value। करेंसी है लेकिन डिजिटल है। जो हम चीज़ पैसों के साथ, रुपए के साथ करते हैं, वही सेम चीज़ हम क्रिप्टो करेंसी के साथ करेंगे, बट ऑन डिजिटल बेसिस। देयर इज नो फिजिकल करेंसी अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। मेजोरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर लिमिटेड इन नंबर। तो वो चीज़ आ गई कि अनलिमिटेड सप्लाई को कैप कर दिया, कि एक फिक्स सप्लाई कर दी जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन को ना फ्यूल करे, एंड हेंस क्रिप्टो करेंसीज आर डिफ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी इज फिएट करेंसी कि वो इन्फ्लेशन को फ्यूल करती है। डिफ्लेशनरी क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है, विच इज व्हाई दे कांट बी अ मेजर फोर्स दैट supply, that is why it is deflationary, and also it carries some value on its own। कोई बोल रहा है इसलिए वैल्यू कैरी नहीं कर रहा है, वो लिमिटेड सप्लाई में है, यू नो द डिमांड एंड सप्लाई लो, वो लिमिटेड सप्लाई में है इसलिए उसकी वैल्यू है। अनलाइक एनी अदर क्रिप्टो करेंसीज, अनलाइक एनी अदर एक्सेप्टेड क्रिप्टो करेंसीज इन द वर्ल्ड, अनलाइक एनी अदर एक्सेप्टेड करेंसीज इन द वर्ल्ड, क्रिप्टो करेंसी इज नॉट कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड और मैनेज बाय वन सिंगल एंटिटी। उसको एक नेटवर्क में डाल दिया गया है, द नेटवर्क विच इज टोटली कंप्यूटराइज, टोटली डिजिटल, जिसपे कोई एक पर्सन रेगुलेट नहीं कर सकता। तो वो उसको नेटवर्क में शिफ्ट कर दिया है। दैट मीन्स कि कोई उसको चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकता, चाह कर भी रेगुलेट नहीं कर सकता, विच इज द मेजर एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, राइट। नाउ क्रिप्टो करेंसीज हो गई, क्रिप्टो करेंसीज का बेस क्लियर हो गया कि क्रिप्टो करेंसीज क्यों जरूरत है। अभी सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी कौन थी? तो दैट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन के पीछे, इन्वेंशन के पीछे यही रीजन है कि इट वांट्स टू रिप्लेस तो नहीं कह सकते, लेकिन इट वांट्स टू प्रोवाइड अनदर ऑप्शन टू अस सिटीजन्स, अस ह्यूमंस, कि आप पैसों की जगह कुछ और चीज सर्कुलेशंस में यूज कर सको। तो व्हाट इज बिटकॉइन? नाउ देयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ बिटकॉइन। इट डिपेंड्स कि बिटकॉइन कैसे लिखा जा रहा है। नाउ इफ बिटकॉइन इज रिटन विद अ कैपिटल बी, then it denotes बिटकॉइन एज अ whole system of cryptocurrencies।
if it is written with capital B, Bitcoin is called a protocol for a decentralized peer-to-peer network that create consensus without needing a central authority to provide trust. सेम चीज, वो एक नेटवर्क है जो peer to peer transactions को facilitate करता है without the need of any central authority. Now, if the Bitcoin is being written, it is used to denote a Bitcoin, a single bit BTC coin. कि एक बिटकॉइन है तो उसको स्मॉल बी के साथ लिखा जाएगा. नाउ यू कांट स्पेल बिटकॉइन और बिटकॉइंस. वो ये बिटकॉइन जो शब्द है वो सिंगुलर ही है और प्लूरल भी यूज किया जा सकता है. लाइक यू कैन ऑल्सो कॉल वन बिटकॉइन एंड यू कैन ऑल्सो कॉल टू बिटकॉइन. यू कांट कॉल इट टू बिटकॉइंस. तो वो प्लूरल डजंट एग्जिस्ट हियर इन स्मॉल बी. तो स्मॉल इट्स कॉल्ड something or now बिटकॉइन जिस चीज से चल रही है वो टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं. नाउ व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन को सिंपल भाषा में कहें तो इट इज अ चेन ऑफ ब्लॉक्स ऑब्वियसली, बट एग्जैक्टली वो क्या है? देन इट इज अ चेन ऑफ ब्लॉक्स दैट कंटेन अ पब्लिक लेजर. मतलब उस ब्लॉक्स की जो चेन है उसमें एक पब्लिक लेजर है. जैसे हमारी पासबुक्स हो गए बैंक अकाउंट्स की, जैसे देखकर ले देखो कि आप सिमिलरली which is available for everyone. That ledger tells you किसने किसको बिटकॉइन सेंड किया. ऑब्वियसली वो पता नहीं चलता कि बिटकॉइन एग्जैक्टली किसने किसको भेजा, बट हो सकता है कि किस आईडी से बिटकॉइन that contains a public ledger where it contains all the transactions कि बिटकॉइन कहाँ पर भेजा जा रहा है, कहाँ से रिसीव हो रहा है, कहाँ सर्कुलेट, इन शॉर्ट कहाँ सर्कुलेट हो रहा है. तो let us understand the blockchain technology in detail. Sorry to interrupt you, sir, but your voice is breaking down. Your voice is breaking. Okay. It's still breaking. Okay. Please allow me a minute. Sure, sir. Okay, is it breaking now? Is it fine? No, so now it's fine. Yes, now it's fine. Okay. So, what is blockchain? A blockchain exists on a public server. That is a chain of numerous blocks. जो एक के बाद एक ट्रांजैक्शंस जो कंटेन करता है उसके अंदर, that goes into a block. उस ब्लॉक्स खत्म हो जाने पर एक दूसरा ब्लॉक बनता है एंड ऑल दिस ब्लॉक्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय अ डिजिटल चेन. सो बेसिकली ब्लॉकचेन को आप इन शब्दों में कह सकते हैं कि इट इज अ चेन ऑफ वेरियस ब्लॉक्स दैट कंटेन्स न्यूमरस ट्रांजैक्शंस अबाउट वेयर बिटकॉइन इज बीइंग सर्कुलेटेड. अभी एग्जैक्टली उस ब्लॉक्स के अंदर लेजर में क्या होता है, हाउ इट इज सेफ, how it is so digitally progressive कि लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक रिवॉल्यूशन मान रहे हैं. तो टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है. तो जैसे मैंने कहा बेसिकली उस ब्लॉक्स के अंदर एक लेजर ही होता है, एक पब्लिक लेजर ही होता है विच कंटेन्स ट्रांजैक्शंस. बट टू सेफ उसको सेफ करने के लिए, उसको क्रिप्टो करने के लिए, मतलब एक चीज को डिक्रिप्ट करो, एनक्रिप्ट करो, उसको एनक्रिप्ट करने के लिए देयर एग्जिस्ट सम टेक्नोलॉजी व्हिच इज कि लेट्स टेक अ ब्लॉक. ऑलराइट, उस ब्लॉक के अंदर एक लेजर का पेज आ गया. अभी ये जो पेज है उस पेज के ऊपर पहला एक ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा कि लेट्स से श्रेयांश सेंड्स हर्ष 10 बिटकॉइंस. तो ऐसा लिखा जाएगा कि श्रेयांश के बैलेंस से 10 बिटकॉइंस माइनस हुए
हर्ष के बैलेंस से 10 बिटकॉइन प्लस हुए एंड कॉमन ट्रांजेक्शन श्रेयांश सेंड्स हर्ष 10 बिटकॉइंस, राइट। अभी वो लेजर रिकॉर्ड हो गया। अभी उस ट्रांजेक्शन्स के नीचे और भी ट्रांजेक्शन्स आते जाएंगे जब तक वो पेज खत्म ना हो जाए। अभी वो पेज खत्म हो गया, देन व्हाट वुड हैपन कि वो पेज खत्म हो गया, देन नेक्स्ट पेज वुड बी क्रिएटेड। उस पेज पे प्रीवियस जो पेज है, प्रीवियस पेज की एक आईडी, एक यूनिक आईडी होगी जो ऊपर लिखी होगी। लेट सपोज कि पहले ब्लॉक की आईडी हमने 216 रखी, तो सेकंड पेज पे ऊपर एकदम ऊपर इंडेक्स में 216 लिखा जाएगा, जिससे हमें पता चले कि वो कौन से ब्लॉक की बात आया है। Then it would contain a number. Then as usual it would contain all the transactions within the block. जो block, excuse me, हाँ, जो ब्लॉग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा है वो ब्लॉग भरता जाएगा धीरे धीरे, राइट। एंड देयर वुड बी अ सेपरेट प्रूफ ऑफ वर्क आईडी, उसी ब्लॉक की एक अलग आईडी। ऊपर आईडी आई, वो आई प्रीवियस ब्लॉक की, राइट। बीच में ट्रांजेक्शन्स आई एंड लास्ट में उसी ब्लॉक की एक आईडी आएगी विच इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क आईडी, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके साथ वो ब्लॉक खत्म होता है। देन a next block would be created which would contain a separate ID of the second block। जैसे कि आप देख सकते हैं कि थर्ड ब्लॉक में सेकंड ब्लॉक की एक आईडी है, उसके बाद ट्रांजैक्शंस है और उसी थर्ड ब्लॉक की अलग आईडी। इट वुड देन कंटिन्यू, जैसे कि मतलब प्रीवियस नेक्स्ट ब्लॉक में प्रीवियस ब्लॉक की आईडी आती जाएगी, करंट ब्लॉक में करंट आईडी, फिर नेक्स्ट ब्लॉक में करंट ब्लॉक की ID. It would continue and a chain of blocks would be created, right? So this is how blockchains functions. But उसके पीछे मतलब मैंने जैसे कहा उसकी सेफ्टी क्या है। अगर लेट सपोज मैंने आज बिटकॉइन के सिस्टम हैक करने के लिए कुछ तरीका ढूंढा कि आई वुड ट्राई टू हैक बिटकॉइंस, मेरे पास 10 बिटकॉइंस है नहीं, तो आई वुड जस्ट राइट वो, क्योंकि ये डिजिटल है, आई कैन राइट कोड्स एंड आई कैन ब्लॉक में चेंजेस कर सकता हूँ। तो मैंने एक ट्रांजेक्शन, फेक ट्रांजेक्शंस बना दिया कि आई सेंट हर्ष 10 बिटकॉइंस। तो वो 10 बिटकॉइंस अगर मतलब फ्रॉड से नोट करने की कोशिश की तो क्या होगा कि नाउ पे अटेंशन टू दिस स्लाइड क्लोजली, कि जो ट्रांजेक्शंस है, राइट, वो ट्रांजेक्शन में मैंने एक फेक ट्रांजेक्शन नोट किया। तो वो क्या होगा, जब भी कोई ब्लॉक पे कोई चेंजेस आता है, दैट वुड मीन कि उस ब्लॉक की आईडी चेंज हो जाएगी। इट इज डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड विजुअली, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल इन ब्लॉक नंबर 4। तो ब्लॉक नंबर 4 में जो ट्रांजैक्शंस है, वो ट्रांजैक्शन में मैंने एक फेक ट्रांजैक्शन लिस्ट करने की कोशिश विद से कि मेरे पास 10 बिटकॉइन थे नहीं, लेकिन मैंने ऐसा लिख दिया वहां पर जाके कि आई सेंट हर्ष 10 बिटकॉइंस। तो मतलब हर्ष के पास भी 10 एक्स्ट्रा बिटकॉइंस आए विच आर नॉट इन सर्कुलेशन, मतलब जो थे ही वो मैंने इन्वेंट करने की कोशिश की। तो व्हाट वुड इट हैव एन इफेक्ट ऑन ब्लॉकचेन? वहां पर क्या होगा कि जो करंट ब्लॉक की आईडी है, वो करंट ब्लॉक की आईडी चेंज हो जाएगी। व्हेनेवर समवन एडिट्स अ ब्लॉक, वो ब्लॉक की आईडी चेंज हो जाएगी। अभी वो ब्लॉक की आईडी चेंज हो गई, दैट वुड मीन नेक्स्ट ब्लॉक की भी आईडी चेंज हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉक में प्रीवियस ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन कोड है, तो वो आईडी भी चेंज हो जाएगी। अभी उसमें चेंज हुआ तो उस ब्लॉक की भी करंट आईडी चेंज हो जाएगी। तो दैट वुड क्रिएट अ चेन रिएक्शन इन चेंजिंग ऑल द आईडी ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक्स। मतलब अगर मैंने चौथे ब्लॉक पर कुछ चेंजेस करने की कोशिश की है, तो उसके बाद के सभी ब्लॉक्स में चेंजेस आ जाएंगे। तो दैट वुड मीन, दैट वुड अलाउ एनीवन टू फाइंड डिफेक्ट कि भाई कहाँ पर फ्रॉड हुआ है, तो वो बैक ट्रेस करके ब्लॉक नंबर 4 पर पहुंचेंगे कि हाँ ओके, यहाँ से सब कुछ चेंज हुआ है, तो देयर इज सम फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन इन दिस ब्लॉक। और उसका मतलब वो होगा कि आई वुड गेट कॉट कि मैंने फ्रॉडुलेंट केस से हर्ष को 10 बिटकॉइंस ट्रांसफर करने की कोशिश की। सो दिस इज हाउ सेफ ब्लॉक्स इज। नाउ इमेजिन कि बिटकॉइन क्योंकि पूरा वर्ल्ड यूज करता है, तो देयर वुड बी एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट आर बीइंग प्रोसेस्ड विद इन सेकंड्स। एक सेकंड में ही 3 से 4, देयर इज नो डेफिनेट नंबर, लेकिन एक सेकंड में ही 3 से 4, 5 से 6 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते होंगे। नाउ व्हाट इफ समवन वांट्स टू मेक a change in one transaction, so that would be
फिजिकली एंड डिजिटली इम्पॉसिबल कि वो कोई चेंजेस कर सके और वो चेंजेस ना पकड़ा जाए. तो दिस इज व्हाई people are considering blockchain as a revolutionary technique in cryptocurrencies, ताकि कोई fraudulent केस से, fraudulent activities से कोई अपने पैसे जो है उससे ज़्यादा या फिर किसी के वहाँ से चुरा ना सके. So this is why blockchain is being pushed into even in different markets. कि एक बात तो वो भी चल रही थी कि हमारे इलेक्शंस में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए, जिसकी वजह से वोट्स सही चले, जहाँ पर जाने वहाँ पर ही वोट्स जाए. सो दिस इज हाउ टाइट, दिस इज हाउ सिक्योर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज. तो वो ब्लॉक्स, जैसे मैंने कहा कि वेरीफाई कौन करता है. अगर किसी को पकड़ना है कोई फ्रॉड, तो वो वेरीफाई कौन करता है. अगर कोई ट्रांजैक्ट कर रहा है, अगर कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्ट कर रहा है, तो वो किसकी पकड़ में आते हैं. तो वो माइनर्स एक कम्युनिटी है दैट डू माइनिंग्स ऑफ बिटकॉइन. तो व्हाट देयर verify the transactions, they check whether the transaction is correct or not, and they create blocks. They create blocks and then put it on the main blockchain of the Bitcoin. So the process of this is called mining. What is mining? Bitcoin mining is the process by which new Bitcoins are entered into circulation. वो कैसे सर्कुलेशन में आते हैं, इट इज इन द नेक्स्ट स्लाइड, बट इट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉकचेन लेयर. जैसे मैंने कहा कि एक माइनर को वो ब्लॉक्स के सारे ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करने होते हैं. वो वेरीफाई करके वो ब्लॉक पूरी ओरिजिनल बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में जाता है, एंड दिस वर्क इज बीइंग डन बाय न्यूमरस माइनर्स. तो while there are thousands and thousands of miners writing these blogs, verifying these blogs, there is only one miner that will win. कि सबसे फास्टेस्ट जो ये वेरीफाई करेगा, सबसे फास्टेस्ट जो ये ब्लॉकचेन में डालेगा, that would win and that would get some bitcoins in reward. तो this is why आपको पता ही होगा कि बिटकॉइन माइनिंग में कितने सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत है, कितनी एनर्जी जाती है, कितने रिसोर्सेज यूज होता है. तो माइनिंग इज नॉट अ चाइल्ड लाइक प्रोसेस. इट टेक्स मच ऑफ कंप्यूटेशन फ्रॉम द पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर. आप हमारा आधा लैपटॉप माइनिंग प्रोसेस में नहीं ट्राई करने जाओगे, बैठ फट जाएगी. तो सुपर कंप्यूटर्स चाहिए. That supercomputers need a huge amount of electricity, huge amount of to do computational work. This is why someone the block, when someone mines the block successfully, उसको bitcoin दिए जाते हैं. Imagine you do some work and आपको एक bitcoin which is equal to 25 lakhs rupees right now, वो आपको reward किए जाए. And let me tell you, एक bitcoin नहीं मिलते, ज़्यादा bitcoin मिलते. तो mining is a, as said, mining is a critical component of maintenance and development of blockchain ledger. वो miners ही है जो blockchain technology को sustain कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि सब transaction सही हो रहे हैं. It is performed using very sophisticated computers, as we looked it, that solve extremely complex computational math problems. तो सारा काम computer को ही करना पड़ता है. That requires some bit of solving mathematical problems. और जो miner सबसे ज़्यादा, सबसे fast ब्लॉक्स को वेरीफाई कर सका, वो माइनर विनर हो जाएगा. तो हाउ इज दिस माइनिंग इज डन, मतलब ये माइनिंग स्टैंड कर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में. और अगर आप किसी को बिटकॉइन भेजने जा रहे हैं, तो हाउ अ ट्रांजैक्शन गेट्स वेरीफाइड, हाउ अ ट्रांजैक्शन गेट्स टिक मार्क कि भाई चलो ओके, ये ट्रांजैक्शन सेफ है, ये ट्रांजैक्शन इज nothing is suspicious in this transaction. So this is, let's take a look at the process how this happens. So the first step is someone sending someone a portion of bitcoins. Let's say A ने B को एक bitcoin transfer किया. Now at that time ये सब seconds का खेल है. जो mining process है वो back end पे चलती रहती है. As the moment A ने bitcoin भेजा B को, B would receive notification within minutes, within seconds कि A ने bitcoin भेजे. Now this transaction is not yet verified. Take a note, this transaction is not yet verified. उस A ने bitcoin भेज दी, वो bitcoin transactions आ गया,
वो सर्वर में आ गया, लेकिन वो ट्रांजैक्शन जाएगा कहाँ? द ट्रांजैक्शन गोज टू अ पूल ऑफ अनकन्फर्म ट्रांजैक्शंस। एक सर्वर के नीचे, सर्वर के बैक एंड पे एक पूल रहता है जहां पर अनकन्फर्म ट्रांजैक्शंस होते हैं। आप यूपीआई से पैसे भेजते हैं और समटाइम्स क्या होता है कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, राइट? ट्रांजैक्शन इन प्रोसेस बताता है या फिर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। समटाइम्स द ट्रांजैक्शन डजंट गेट अप्रूव। तो वो क्या बिटकॉइन में भी सिमिलरली ऐसे ही होता है कि ट्रांजैक्शन होने पर वो ट्रांजैक्शन एक पूल ऑफ अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन से ट्रांजैक्शन में भेजा जाता है। नाउ हाउ विल दिस ट्रांजैक्शन बिकम अ वेरीफाइड ट्रांजैक्शन? देयर दैट इज वेयर माइनर्स कम इनटू द पिक्चर। माइनर्स जो है वो उस पूल ऑफ अनवेरीफाइड ट्रांजैक्शंस में सब ट्रांजैक्शंस उठाएंगे। नाउ विजुअलाइज दिस। आप अपने कंप्यूटर पर बैठे हो, किसी ने ट्रांजैक्ट किया, आपको एक नोटिफिकेशन आई कि समवन हैज ट्रांजैक्टेड इन द बिटकॉइन सर्वर। तो आप माइनर हो, वैसे भी सब अलग अलग माइनर्स को भी नोटिफिकेशन आया कि समवन हैज ट्रांजैक्टेड बिटकॉइन। तो वो जो पूल में होगा वो सब माइनर्स लग जाएंगे उस अनवेरीफाइड पूल से उसको ब्लॉक में डालने के लिए। तो व्हाट विल दे डू? they will pick up this transaction from the pool, they will try to verify it। once they verified कि हाँ सब ये सही है, सब इसने जो भेजा उसकी बैलेंस में से भेजा वो सब सही है, then they put it on the block। उस ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस वो माइनर डालता है, नॉट द वन हु सेंड्स इट। तो वो माइनर वो ट्रांजैक्शंस अनवेरीफाइड उठाकर वो बिटकॉइन लेजर में डालेगा। नाउ दिस इज द माइनर दैट विंस, कि मतलब जो हजारों माइनर्स एक साथ लगे हुए थे वो वेरीफाई करने में, उसमें से जो जीत गया वो ब्लॉक के अंदर लेजर डाल दिया उसने, राइट? नाउ बिटकॉइन एज अ सिस्टम कि अगर एक माइनर ने वो ट्रांजैक्शन डाल दिया देन इट वुड नॉट बी ओके टू वेरीफाई इट जस्ट कि उसने डाल दिया। कोई माइनर भी तो फ्रॉड हो सकता है, राइट? तो वो माइनर जब डालेगा ट्रांजैक्शन उस लेजर में, बिटकॉइन के लेजर में, he would the system would send another notification to all the other miners कि ये माइनर ने ये ब्लॉक पे ये ट्रांजैक्शन डाला है। now the other miners task is to confirm this transaction। वो ऑलरेडी वही काम कर रहे थे वेरीफाई करने के लिए। तो अगर उनको नोटिफिकेशन आया that would mean कि that transaction is legit, that transaction is true। तो वो बाकी सब माइनर्स है वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ ओके ये सही ट्रांजैक्शन है, देन एंड ओनली देन वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक पे जाके रिकॉर्ड होगा, वो ब्लॉक पे जाके वेरीफाई होगा। नाउ वंस द ledger has the recorded transaction of the bitcoin, as I said other miners वो वेरीफाई करेंगे ताकि वो ब्लॉक की ऑथेंटिसिटी कंफर्म हो जाए। आफ्टर इट गेट्स वेरीफाइड, सब माइनर्स ने भी वेरीफाई कर लिया, वो ओरिजिनल माइनर ने भी डाल दिया, तो वो ब्लॉक वुड देन बी कंफर्म कि अभी इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। द ब्लॉक वुड देन कंटिन्यू टू नीचे नीचे और भी ट्रांजेक्शन आते जाएंगे, और अगर वो ट्रांजेक्शन खत्म हो गया तो नेक्स्ट ब्लॉक वुड कंटिन्यू। नाउ ये सब कंप्यूटेशनल टास्क करने के लिए, ये सब वेरीफाई करने के लिए, ये सब बिटकॉइन को ये ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉक में डालने के लिए माइनर्स रिसीव अ कंपेंसेशन, दैट इज माइनिंग कंपेंसेशन। अगर एक ब्लॉक, लेट मी टेल यू, अगर एक ब्लॉक आपने एज अ माइनर बिटकॉइन की सर्वर पे, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन सर्वर पे वेरीफाई कर दिया इन 2008 टू 2012, आपको एक ब्लॉक माइन करने पे 50 बिटकॉइंस मिलते थे। इमेजिन 50 बिटकॉइंस फॉर माइनिंग जस्ट वन ब्लॉक। अगर कोई 50 बिटकॉइंस दे रहा है एक ब्लॉक माइन करने के लिए, डेफिनेटली कुछ तो खास काम होगा, कुछ तो डिफिकल्ट टास्क होगा जो ये माइनर्स कर रहा है। तो दिस इज व्हाई माइनिंग इज नॉट एन इजी टास्क। तो अगर हर ब्लॉक को माइन करने के लिए, हर ब्लॉक को माइन करने के लिए माइनर्स को अगर बिटकॉइंस मिल रही है, तो वुडंट दैट मीन कि बिटकॉइन हमेशा, मतलब जब तक माइनिंग चलता रहेगा तब वुडंट इट मीन दैट, करेक्ट? कि जब तक माइन करते रहेंगे लोग तब तक बिटकॉइन सर्कुलेशन में आते रहेंगे, बट दैट इज एग्जैक्टली इन ऑफ व्हाट बिटकॉइंस फाउंडेशन वाज कि बिटकॉइन को लिमिटेड रखना है, राइट? सो उस चीज को टैकल करने के लिए, उस सर्कुलेशन को लिमिट करने के लिए, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड बिटकॉइन हाल्विंग। व्हाट इज कि माइनर्स को एक ब्लॉक कंफर्म करने के लिए, एक ब्लॉक वेरीफाई करने के लिए जो रिवॉर्ड मिलता है,
लाइक 50 बिटकॉइंस। मैंने क्या कहा था कि 2009 पर आप अगर ये करते थे तो आपको 50 बिटकॉइन मिलते। सो वो मैं वही कहने जा रहा था कि दैट एग्जैक्टली आज वो उतने नहीं मिलते तो कितने मिलते हैं। नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ बिटकॉइन हाल्विंग, कि अगर 2008 से लेके 2018 तक आप माइन कर रहे थे बिटकॉइन को, तो इट वुड गिव यू 50 बिटकॉइंस पर ब्लॉक, 50 bitcoins per block for verifying that block 2008 से 2012 तक। 2012 के बाद क्या, 2012 के बाद और 4 साल 2012 टू 2016 वो सेम ब्लॉक को वेरीफाई करने के लिए, वो सेम ट्रांजैक्शंस को ऑथोराइज करने के लिए आपको 25 बिटकॉइंस मिलेंगे, लाइक हाफ ऑफ द प्रीवियस रिवॉर्ड, 50 से लेके 25। एंड सिमिलर दिस प्रोसेस कंटिन्यूज कि 2016 से 2020 तक अभी माइनर्स को 12.5 बिटकॉइंस मिलते हैं। नाउ 2020 जस्ट गया, तो 2020 से लेके अभी 2024 तक माइनर्स को सिर्फ 6.25 बिटकॉइंस मिलेंगे फॉर जस्ट माइनिंग वन ब्लॉक। तो ऐसे करके करके बिटकॉइन की रिवॉर्ड सिस्टम कम होती जाएगी एंड द सप्लाई ऑफ बिटकॉइन वुड स्टार्ट गेटिंग कैप्ड। और वो सप्लाई कब बंद होगी, इट विल क्लोज, बिटकॉइन की सप्लाई सर्कुलेशन में क्लोज होगी इन द ईयर 2040, 2140 ईयर पे बिटकॉइन की सर्कुलेशन बंद होगी, वाइल ब्लॉक से रिवॉर्ड होते होते 21 बिटकॉइंस वुड बी इन सर्कुलेशन। ये 50 ब्लॉक्स करके करके 50 जो बिटकॉइन सर्कुलेशन में आए थे इन द ईयर 2140, Bitcoin miners would finally not get any reward for mining Bitcoin, and they would cap the supply at 21 million Bitcoins. 21 million Bitcoin के बाद वो उसकी सप्लाई खत्म and the story would be an happy end. Now that we have understand the Bitcoin's work system, Bitcoin's economy, how it works, let's take a quick look at what alternatives of Bitcoin mean. Alternatives of Bitcoin are cryptocurrencies that are not Bitcoin, obviously. तो कौन कौन से alternatives Bitcoin है? Altcoins. Altcoins is a short form of alternative coins, which is the same definition कि Bitcoin के अलावा जो cryptocurrencies है, every other 4,500 cryptocurrencies apart from Bitcoin are called altcoins. What is stable coins? जैसे कि आपको पता है कि Bitcoin is not Bitcoin is volatile, Bitcoin stable नहीं है। तो stable coins is a different type of cryptocurrencies that tries to rule out the volatility factor of cryptocurrencies. वो जो stability factor को push करने के लिए stable coins आते जाते हैं। How do they work? कैसे काम करते हैं वो? Stable coins को एक asset के साथ back किया जाता है। सिंपल एग्जांपल इज इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड सबको पता ही होगा। इंडेक्स फंड क्या होता है? एक इंडेक्स को बेंचमार्क बना के उसी इंडेक्स के हिसाब से वो फंड काम करेगा। तो स्टेबल कॉइंस वर्क्स इन सिमिलर वे। स्टेबल कॉइंस एक एसेट पकड़ेगा, लेट्स से गोल्ड, तो वो गोल्ड ले लिया, स्टेबल कॉइंस को लेके एक स्टेबल कॉइन को लेके गोल्ड के साथ पैक कर दिया। तो उसका मतलब क्या होगा कि वो गोल्ड की वॉलेटिलिटी के हिसाब से वो कॉइन वॉलेटिल रहेगा। तो दैट वुड फैक्टर आउट द वॉलेटिलिटी। शिट कॉइंस शिट कॉइंस समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। डॉज कॉइन, शिबा इनू, जो भी है, बेसिकली पेनी स्टॉक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड। जो भी नाम काफ़ी मीनिंगफुल है, शिट कॉइंस, जो भी कॉइंस कुछ काम के लिए, दैट आर कॉल्ड शिट कॉइंस। टोकन्स, व्हाट इज टोकन्स? NFT tokens, mint tokens, and so on. Tokens क्या है? Tokens wants to, अभी crypto currencies क्या है? Crypto currencies wants to give an option to use them as a currency, कि मुझे डॉलर की जगह यूज होना है, मुझे रुपए की जगह यूज होना है। Now what is token? Token is basically Paytm cash of cryptocurrency world. वो टोकन कहाँ पर काम आएंगे? किसी एक इंडस्ट्री में, किसी एक ऐप पे या किसी एक ग्रुप के बीच वो कुछ चीज़ें अंदर एक्सचेंज करने के लिए वो काम आएंगे। पेटीएम कैश इज सिमिलर। पेटीएम कैश अगर आप किसी को पेटीएम यूजर को भेज रहे हो तो दैट इज सिमिलर टू व्हाट टोकन इज। सो दिस आर सम अल्टरनेटिव्स ऑफ बिटकॉइन: ऑल्ट कॉइन, स्टेबल कॉइन, शिट कॉइन्स एंड टोकन्स। नाउ द प्राइम क्वेश्चन,
इसके लिए शायद आप आए होंगे आज कि वाई आर क्रिप्टो करेंसी सो वॉलेटाइल। कल 20% ऊपर, परसों 25% नीचे, उसके नेक्स्ट दिन बाद 1% ऊपर, वापस 10% ऊपर। सिमिलर एग्जांपल डॉज कॉइन। डॉज कॉइन इलॉन मस्क की ट्वीट के साथ डबल, नेक्स्ट टाइम दूसरे दिन इलॉन मस्क ने वापस ट्वीट किया और डबल, एंड द वन तीसरे दिन नहीं किया 50% डाउन। सो इतनी वॉलेटाइल क्यों है? वाई आर क्रिप्टो करेंसीज सो वॉलेटाइल? बिटकॉइन भी वॉलेटाइल है बाय द वे। टेक अ लुक एट दिस पिक्चर। In 2012, Bitcoin's value was wiped off by 42.9%. Similarly, उसी ईयर में अप्रैल के टाइम 56.3 रिडक्शन इन वैल्यू। $16 का बिटकॉइन $7 का हो गया था। नेक्स्ट ईयर 2013 -32, 2013 -35, एंड 2021 जब टेस्ला ने ऐसा बोला, इलॉन मस्क ने ऐसा ट्वीट किया कि Tesla would stop accepting bitcoins, then what happened is 51.1% correction in Bitcoin 51.1% तक डाउन हो गया था। So the question still exists, why are cryptocurrencies so volatile? तो इसका बेस टू बेस आंसर यही है कि द डिमांड एंड सप्लाई लॉ। वी ऑल नो व्हाट डिमांड एंड सप्लाई लॉ इज, कि जब तक एक प्रोडक्ट की डिमांड है और वो प्रोडक्ट सप्लाई में नहीं अवेलेबल है, तो देन इट वुड बूस्ट द प्रोडक्ट्स प्राइसेस। तो सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज में भी यही चीज़ पाई जाती है कि व्हाट हैपन्स इज क्रिप्टो करेंसीज आर न्यू, दैट इज नॉट अ फैक्ट, दैट इज अ ट्रू फैक्ट, सॉरी। क्रिप्टो करेंसीज आर न्यू, वो अभी अभी आई है। करेंसीज बहुत साल पुरानी है, क्रिप्टो करेंसी इज न्यू। सो इट इज़ पॉसिबल कि आपके बाजू वाला जो है, आप कॉलेज में आपके बाजू वाला है, या फिर इवन इन योर फैमिली अनदर मेंबर वुड नॉट नो व्हाट क्रिप्टो करेंसीज आर। आपने सुना होगा, इट इज़ पॉसिबल कि आपके पापा या आपके मम्मी ने डॉज कॉइन के बारे में नहीं सुना। सो दिस इज हाउ इट फैक्टर्स इन कि चलो मुझे नहीं पता। नाउ द हाइप इज द फैक्टर विच फ्यूल्स इट। लेट्स से डॉज कॉइन के बारे में भी आपको नहीं पता था 2020 के पहले। डॉज कॉइन के बारे में क्यों पता चलने लगा? बिकॉज इलॉन मस्क स्टार्टेड ट्वीटिंग अबाउट इट। तो डॉज कॉइन डिडंट इवन एग्जिस्ट बिफोर इलॉन मस्क स्टार्टेड ट्वीटिंग अबाउट इट इन इंडिया। तो इंडिया में तो डॉज कॉइन क्या था वो पता ही नहीं था लोगों को। तो इसका क्या रीजन है वॉलेटिलिटी के साथ? What happens is when someone influential, be it Elon Musk या फिर Kanye या फिर चलो इंडियन में कोई शाहरुख खान ने भी ट्वीट कर दिया कि आई एम बाइंग डॉजेकॉइंस, तो व्हाट हैपेंस इज इट क्रिएट्स अ हाइप कि भाई क्या है ये क्या बात कर रहा है, डॉजेकॉइन। तो ऐसे चर्चा में सर्कुलेशन में आने लगता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, everybody is on the internet is talking about it, but there are some limited number of people who are holding it. Elon Musk होल्ड करता है, जो डॉजकॉइन में पहले इन्वेंट किया था वो होल्ड करते हैं। नाउ लोग बात तो कर रहे हैं, बट देयर इज नो वन हु इज सेलिंग इट, जिसको मतलब देयर मस्ट बी सेलर्स, बट हमें पता नहीं है कौन सेल कर रहा है। तो वी वुड बी मतलब हम मर जाएंगे कि डॉज कॉइन दे दे भाई, डॉज कॉइन दे दे, कहाँ से खरीदूं। दैट वुड फ्यूल अप इट्स प्राइजेस। कि जैसे ही कोई इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटी ने ट्वीट किया किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, वो क्रिप्टो करेंसी चर्चा में आ जाएगी और वो क्रिप्टो करेंसीज की हाइप बढ़ जाएगी। हाइप बढ़ने से उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। नाउ वी वुड ऑल राइड दी हाइप, हम ले लेंगे भाई, ये बोल रहा है तो कुछ खास ही होगा, ये बोल रहा है तो कुछ ऊपर ही जाएगा, ले लिया हमने। नाउ सडनली देयर इज नो बस, देयर इज नो हिट कि अब तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो मतलब कोई बात नहीं कर रहा है मतलब किसी को लेना भी नहीं होगा, वो उसकी डिमांड डेफिनेटली कम हो जाएगी। अब डिमांड तो कम हो गई, बट देयर आर एन नंबर्स ऑफ पीपल हु आर होल्डिंग इट, तो उसको भी डिमांड कम कर रहे हैं लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, तो दैट वुड पुश डाउन इट्स प्राइजेस। कि जैसे ही कोई बस गर्म होके ठंडा हो गया, तो दैट वुड वाइप आउट इट्स प्राइजेस। डॉज के केस में भी ऐसा ही है, जब तक इलॉन मस्क ट्वीट करता है तब वो ऊपर चढ़ता है, जब ट्वीट पुरानी हो गई
एक दिन चला गया, डॉज कॉइन वापस जहाँ था वहाँ हो जाता है. So this is how volatility of cryptocurrencies work. It is basically the demand and supply factor only, nothing much. कि लोग जैसे जैसे जानते जा रहे हैं, that would mean कि बिटकॉइन के बारे में अगर सबको पता चलने लगा धीरे धीरे, तो इवेंचुअली उसकी जो वॉलेटिलिटी है, जो 10% 15% अप डाउन हो रहा है, दैट वुड राइड आउट. कि अगर सबको पता है तो वो वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं रहेगी. नाउ वॉलेटिलिटी पता चल गया कि वॉलेटाइल क्यों है. नाउ दैट यू नो कि कोई अगर ट्वीट कर रहा है, कोई अगर इन्फ्लुएंसर पोस्ट कर रहा है, तो यू शुड नॉट जस्ट बाय बिकॉज ही इज और शी इज ट्वीटिंग. So now you know volatility, but what steps, what precautions you should take while investing in cryptocurrencies? The number one prime rule of investing in cryptocurrencies is you should invest an amount which you are absolutely okay to lose. आपको उतनी amount invest करनी चाहिए cryptocurrencies में which you are fine to lose. चला गया कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. लेकिन अगर आप अपनी लाइफ सेविंग्स लगा रहे हो, देन माय फ्रेंड इट इज अ बिग रेड अलर्ट टू स्टॉप इट राइट देयर. कि योर लाइफ वुड बी रूइंड इफ इट वाइप्स इट आउट. क्रिप्टोकरेंसीज आर न्यू, उसका फ्यूचर है डेफिनेटली, बट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम इनटू सर्कुलेशन, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच इन पीपल्स माइंड, इट इज डिफिकल्ट टू टेल. तो you should invest that much money only which you are absolutely okay to lose. बाद में आपको अगर भरोसा है, then once it gets progressive you can definitely invest in it. You should be okay to see ups and downs of the rally. डाउन की तो बात कर ली, कल जाके बिटकॉइन 50% ऊपर उठ गया, आप क्या करोगे? उसको निकालोगे क्योंकि आपके 100 के 150 रुपए हो गए. This is not why you invested, right? You invested because it was a great technology. It was something that would change the economy per se. Then you should be okay. If it goes down, if it goes up, you shouldn't pay attention. You shouldn't get tensed while seeing these ups and downs of the rally. The third precaution is be clear about the reason why you are investing in cryptocurrencies. You should be knowing, you should be at least have an idea in mind why are you even investing in a cryptocurrency. आपने इन्वेस्ट किया बिटकॉइन पे, then what is the reason? Are you just there because you want to gain profits? Are you there because you believe in the technology, or are you there because everyone is investing? Then you should be clear about the reason why you are investing. आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके पहले आपके दिमाग में क्लियर आइडिया होना चाहिए कि मैं किस लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ. KYC before investing. Now this is not the traditional KYC which you are thinking of. KYC ये नहीं कि भाई आधार कार्ड दे दिया, पान कार्ड दे दिया, वो तो चाहिए डेफिनेटली. KYC is know your cryptocurrency before investing. आप जिस क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, you should know how it functions, what foundation it has, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है आगे जाके, उसका क्या विजन है, कौन किसने इसको बनाया, कौन इसको बैक कर रहा है, वगैरह 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 इत्यादि इत्यादि इत्यादि. KYC, know your cryptocurrency before investing in any cryptocurrency. Be very sure while transacting with crypto. अगर आपको किसी को क्रिप्टो भेजना है या फिर आपको एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजना है, आपको WazirX से कॉइन स्विच में लेना है, तो यू शुड बी वेरी श्योर about where you are going to send your crypto, because once you send it, once you press that send button, it can't be traced back. वो पैसे वापस नहीं आएंगे. गलत एड्रेस से भेज दिया, योर लॉस. किसी और को वो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, योर लॉस. और जहाँ पर नहीं भेजना था, योर लॉस. तो वंस इट गेट्स वेरीफाइड, देयर इज नो, मतलब वो पत्थर की लकीर हो गई, देयर इज नो वे यू कैन track it back, you can get it back. And you should be informed about the government stance about cryptocurrencies. इंडिया में एग्जांपल, इंडिया में बात चल रही है कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाए, क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट किया जाए. वी आर नॉट श्योर कि व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स इन अबाउट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया. गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंड हमें पता नहीं चल रहा है कि गवर्नमेंट एग्जैक्टली बैन करना चाहती है या गवर्नमेंट एग्जैक्टली प्रमोट करना चाहती है. तो इफ यू बाय क्रिप्टो करेंसीज and the next day or in the next month even बैन कर दिया सरकार ने,
what would you do? You would lose, मतलब जो पैसे थे वो गए, क्रिप्टो करेंसीज आप रिडीम नहीं कर पाओगे. Why? Because once banned, the transactions would be considered illegal. तो जो आपके एक्सचेंजेस थे, वजीर एक्स थे, कॉइन स्विच थे, आपने जिस जगह से पैसे डिपॉजिट किए थे, पेटीएम से, यूपीआई से, तो वो वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो इलीगल चीज़ है. तो वंस your government, the country you are in, all are in India, once your stance about the governments is known, then and only then जब पता चल गया उसके बाद ही कुछ करना चाहिए. Before that it is foolish to invest in cryptocurrencies. And the last but not the least, what the future holds for cryptocurrencies, I would say definitely it is the future. It would, I see Bitcoin not replacing the currency but giving the users an option कि dollars या रुपए जाने नहीं वाले कहीं पर, वो they are here, they will be here as long as the government still here. But it would give an option to us humans, to us citizens कि मुझे रुपए में ट्रांजैक्ट करना है या फिर मुझे बिटकॉइन में ट्रांजैक्ट करना है. मुझे ऑप्शन दिया जाएगा, मैं सैलरी रुपीज में लूंगा या मैं सैलरी बिटकॉइन में लूंगा. तो इट इज इंडीड द फ्यूचर कि वो क्रिप्टो करेंसीज सर्कुलेशन में आएगी. इट इज द फ्यूचर. टेक्नोलॉजी पर से, टेक्नोलॉजी इज वेरी सिक्योर एज वी सेड, मतलब कोई अगर किसी को फ्रॉड करना है देन इट इज नॉट nearly impossible to do that. And this cryptocurrencies, हमने तो बिटकॉइन के बारे में की. लेट्स टॉक अबाउट ईथर. इथेरियम जो है, इथेरियम ट्राइज टू रिवॉल्यूशनाइज द कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी. मतलब जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी चलते हैं, इथेरियम वांट्स टू रिवॉल्यूशनाइज. बिटकॉइन्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिप्लेस द डॉलर, रिप्लेस द रूपी. बट इथेरियम का काम क्या है? इथेरियम को कॉन्ट्रैक्ट्स में काम आना है. ऐसे ही डॉज कॉइन का काम क्या था? डॉज कॉइन का काम कुछ नहीं था. वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ट्विटर और रेडिट पे मीम्स एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता था, बाकी उसका कुछ काम नहीं था. सिमिलरली मैटिक जो टोकन है वो सब, मतलब एक क्रिप्टो करेंसीज का जो काम है, डेफिनेटली जो भी क्रिप्टो करेंसीज, मेजर क्रिप्टो करेंसीज है, दे हैव सम विजन to revolutionize a particular industry. So definitely there is a future, but how long it would take, how long it would be normal, cryptocurrencies को normal होने में कितना time रहेगा, I don't know about it, but definitely yes, the future about cryptocurrencies is bright. So by that I would like to conclude this session. Thank you all for being in this session. I would like to take all of your questions if you have any, please. Do you have any Hello. questions? Yes, I have one question. Regarding halving, can Yes, you just, please. brief more about halving? ओके सो हमने वुड दैट बी ओके? हिंदी ठीक है, हिंदी में समझाता हूँ मैं. Yes, anything. माइनिंग प्रोसेस क्या थी? यस, माइनिंग, व्हाट वाज द माइनिंग प्रोसेस? कि एक माइनर एक ब्लॉक को वेरीफाई कर रहा है, ही इज चेकिंग इट करेक्ट, ट्रू, ही इज पुटिंग इट ऑन द बिटकॉइन ब्लॉक कि हाँ ये सही है. नाउ टू डू दैट, एज आई सेड कि हजारों लोग लगे हुए ये एक ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने में. Now whoever does this the fastest, जिसका कंप्यूटर सबसे तेज है, that would win. तो definitely someone needs an edge over others to win the transaction. तो वो काम कर रहा है, उसका कंप्यूटर कुछ काम कर रहा है, उस काम की एक वैल्यू है. like if someone is let's suppose आपने किसी को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी, then उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, राइट? नाउ द माइनर्स डू द सेम थिंग कि वो एक प्रॉब्लम, वो एक चीज वेरीफाई कर रहे हैं जो सब लोग नहीं कर पा रहे. ही हैज द एज, ही और शी हैज द एज ओवर अदर्स, तो उसको एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए, राइट? नाउ द रिवॉर्ड इज व्हाट? बिटकॉइंस. उसको एक ब्लॉक वेरीफाई करने के सामने एक बिटकॉइंस मिल रहा है. नाउ ट्रांजैक्शंस, अगर बिटकॉइन को सर्कुलेशन में रहना है, अगर बिटकॉइंस को करेंसी को रिप्लेस करना है, दैट वुड मीन कि बिटकॉइन वुड बी ट्रांजैक्टेड एवरी टाइम, एवरी सेकंड. सब लोग बिटकॉइंस में ट्रांजैक्शंस करेंगे, राइट?
अभी सब लोग ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो लेजर भी बढ़ता जा रहा है, लेजर भी बढ़ते रहे, नए नए ब्लॉक भी बढ़ता जा रहे। अगर कोई माइनर ही नहीं बचा, अगर कोई माइनर ही नहीं बचा माइन करने के लिए, तो हाउ वुड दे वेरीफाइड? तो कोई भी आके कोई फ्रॉड कर सकता है। तो यू नीड माइनर्स, बट ऑल्सो यू नीड अ कैप, कि अभी जो फिएट करेंसीज की सबसे बड़ी लिमिटेशन है दैट इज अनलिमिटेड। कोई भी कभी भी आके पैसा छाप दिया, ले लो पैसा, पैसा नहीं है पैसा छाप दिया, ले लो पैसा। तो उसी लिमिटेशन को टैकल करने के लिए बिटकॉइन, तो माइनर्स भी चाहिए, बिटकॉइन को लिमिट, बिटकॉइन को सप्लाई भी लिमिट करनी है। तो व्हाट वुड इट मीन? बिटकॉइन हाल्विंग। व्हाट इज द सॉल्यूशन? बिटकॉइन हाल्विंग, कि माइनर्स को ब्लॉक को वेरीफाई करने के लिए जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है वो एवरी 4 years वो घटाते जा रहे हैं। दैट वुड मीन कि पहले 50 मिलता था, अभी 25 मिल रहा है, फिर बाद में 12.5 मिल रहा है, बाद में 6.25 मिल रहा है। दे आर गेटिंग बिटकॉइंस, क्योंकि बिटकॉइंस की वैल्यू भी बढ़ रही है। दे आर गेटिंग बिटकॉइंस बट लेसर बिटकॉइंस देन व्हाट दे यूज्ड टू गेट अर्लियर। ऐसे ऐसे करके सप्लाई भी कैप हो गई और माइनर्स भी नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाई बिटकॉइन हाल्विंग इज नीडेड। Okay, thank you so much. If anyone has question, Yes, Sir, Jetvi Parekh. Yes. sir, as you said, halving. So Bitcoin wants to replace currencies, but by 2040, its supply would be reduced or would not be. 2140. Okay, 2140. So is it real feasible? Like we won't be Bitcoins won't be supplied. So is it really feasible to replace currencies? Like, see, the same reason Bitcoin was found was unlimited supply. प्रॉब्लम क्या है पैसों में, रुपए में, कि अगर गवर्नमेंट प्रिंट ही करते जा रही है। नाउ आई लेट मी शो यू अ पिक्चर। मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay. Can you see this picture? Just a minute. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Okay. So this is the purchasing value of $1, right? So a dollar in let me minimize it. So a dollar in 1920 was equal to dollar, मतलब डॉलर के सामने डॉलर की एक वैल्यू आपको मिल रही है। नाउ विथ टाइम, जैसे जैसे बेसिक डिमांड एंड सप्लाई लॉ में समझाता हूँ। अगर एक चीज की ऊपर लिमिट है, राइट, अगर वो चीज की ऊपर लिमिट है, देन इट वुड मीन कि उसकी डिमांड एंड सप्लाई रहेगी, कि अगर सप्लाई को कैप किया जाएगा, डिमांड को कैप किया जाएगा। लेकिन करेंसीज, करंट करेंसीज का क्या है कि दे आर अनलिमिटेड थियोरेटिकली। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट्स कैन प्रिंट करेंसीज एनी टाइम दे वांट। यूएस में पेंडेमिक के दौरान जो करेंसीज प्रिंट की गई है, मतलब यूएस डॉलर्स जितने प्रिंट किए गए, दैट इज बियॉन्ड द रिकॉर्ड। मतलब आज इस टाइम से पहले इतनी करेंसीज कभी प्रिंट ही नहीं की गई है। तो दैट वुड ब्रिंग डाउन कि अगर कोई चीज की एम्पल अमाउंट ऑफ सप्लाई है, अगर कोई एक चीज बहुत ज्यादा मिल रही है, तो वो चीज की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही। इन्फ्लेशन, 100 रुपए का डोसा 5 साल बाद 110 का हो गया। आप दूध लेने जाते हो, 30 का दूध 40 का हो गया। द रीजन बिहाइंड दिस इन्फ्लेशन इज नॉट, कोई साइंस नहीं है इसके पीछे। मेजर रीजन वही है कि लोगों के पास पैसे बढ़ रहे। टू दिस, अंडरस्टैंड दिस, कि अगर मैं एक सैलरी कमा रहा हूँ, राइट, तो मेरी अगर सैलरी कल अगले साल 50% बढ़ गई, 20,000 की थी 30,000 हो गई, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए।
मेरे पास पैसे आ गए तो आई वुड स्पेंड इट समवेयर, मैं कोई चीज़ खरीदूंगा वो पैसे यूज़ करने के लिए, और वो अगर मैं चीज़ खरीद रहा हूँ चीज़ उसकी सप्लाई कम हो जाएगी बिकॉज आई एम बाइंग इट, उसकी लिमिट कम होती जाएगी। तो अगर सब लोग खरीद पाते तो वो चीज़ तुरंत खत्म हो जाती, तो व्हाट वुड मीन कि उसके भाव बढ़ा दो, सब लोग खरीद ना पाए उसके लिए भाव बढ़ा दो सप्लाई करने के लिए। तो करेंसीज पुश हो रही है, करेंसीज प्रिंट हो रही है, लोगों के पास पैसे बढ़ रहे हैं, बट द रीजन मतलब जो 1 रुपए पहले 1 रुपए में जो चीज़ आती थी, हम सब सुनते हैं अपने फैमिली से कि भाई पहले 10 रुपए में तो एक मूवी हो जाती थी, पहले 10 रुपए में तो एक रेस्टोरेंट का एक डिनर हो जाता था, बट अभी क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज सबके पास पैसे आ गए, वी हैव सीइंग प्रोग्रेसिव राइट, कि मतलब सब लोग धीरे धीरे अमीर हो रहे हैं, सब लोग इजीली सस्टेनेबल हो रहे हैं, लाइक पहले जैसी गरीबी अभी नहीं रही है। व्हाई? बिकॉज सबके पास पैसे आने लगे। तो रीजन व्हाई बिटकॉइन वाज फाउंड इज कि भाई ऐसे कैसे सबके पास पैसे आने लगेंगे, तो जो मतलब इट इज कैपिटलिज्म, सबके पास पैसे आने लगेंगे तो भाई हाउ वुड एवरीवन सस्टेन, कि मतलब तो ऐसे ही तो इन्फ्लेशन अनलिमिटेड तक जाता रहेगा, हाइपर इन्फ्लेशन तो सुना ही होगा आपने। तो बिटकॉइन वो भी वही सेम रीजन है कि अगर उसकी सप्लाई पे कैप नहीं रखा गया, अगर उसकी सप्लाई पे कैप, तो व्हाट चेंज इट वुड मेक, चेंज क्या करेगा कोई? कुछ नहीं। वो जो मनी भी अनलिमिटेड था, बिटकॉइन भी अनलिमिटेड है, तो वो चेंज होगा नहीं। तो उसी टैकल करने मतलब अगर वो प्रिंट नहीं, अगर वो बिटकॉइन सर्कुलेशन में ज़्यादा नहीं आएंगे तो इट वुड कंटेन अ वैल्यू राइट। आज जो बिटकॉइन बढ़ रहा है उसके पीछे एक पहला रीज़न ये है कि वो धीरे धीरे चर्चा में आ रहा है। सेकंड रीजन इज बिकॉज बिटकॉइंस की वैल्यू लिमिटेड है, जैसे जैसे कोई चीज़ कम होती जाती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाती है। गोल्ड भी सेम है कि गोल्ड के रिजर्व्स जो है हमारे अर्थ में, वो गोल्ड के रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई गोल्ड्स प्राइस हैव बीन राइजिंग अप। सो बिटकॉइन की भी वही चीज़ है, बिटकॉइन इज करेंसीज को थोड़ा डिफरेंट लगता है बिकॉज इट इज लिमिटेड एंड इट इज सेल्फ अप्रिशिएटिंग। करेंसीज को हमने नहीं देखा कि 1 रुपए का 2 रुपए हो गया, एक सेम करेंसी की वैल्यू 1 रुपए की 2 वैल्यू होगी, बट इट इनवर्स इज दैट कि उसी 1 रुपए में अब कम चीज आएगी। बिटकॉइन के यहाँ दूसरा चीज है कि उसी बिटकॉइन के सामने ज्यादा चीज आएगी। व्हाई? बिकॉज इट इज लिमिटेड इन सप्लाई। तो वॉलेटिलिटी जो फैक्टर है, इट वुड बी फिजिबल वंस इट रिमेन्स लेस वॉलेटाइल। अभी वॉलेटाइल ज्यादा है क्योंकि नोबडी, वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट इट, लेकिन जैसे जैसे चर्चा में आता है, जैसे जैसे सब लोग यूज करने लगेंगे, इट्स वॉलेटिलिटी वुड फैक्टर आउट कि वो धीरे धीरे। मुझे लगता है क्वेश्चन आपका वही है कि कल जाके 10 रुपए की ब्रेड हो गई, परसों जाके 15 रुपए की ब्रेड हो गई, वापस 7 रुपए की ब्रेड हो गई, तो इट इज नॉट करंटली फीजिबल। करंटली वो राइड करना पॉसिबल नहीं है, बट वंस इट गेट स्टेबल इट कैन डेफिनेटली रिप्लेस द सर्कुलेशन। Thank you so much, sir. Yes, sir. I had a question. That can you specify the basic risks that are involved while investing in the cryptocurrency? प्राइम रूल, एक बार डाल दिया गया, वो आया नहीं आया भूल जाओ, आया तो ठीक है, गया तो ठीक है। करंटली एक ही रूल्स के साथ चलना है, आया डाल दिया मैंने, भूल जाओ, 10-15 साल भूल जाओ। यू शुड बी एब्सोल्युटली ओके। कल जाके 1000 रुपए के 500 हो गए, अरे 0 हो गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्राइम रूल यही है कि यू शुड बी ओके टू लूज एवरीथिंग दैट यू आर पुटिंग इन क्रिप्टोकरेंसी। तो रिस्क, मैक्सिमम रिस्क यही है, बिकॉज अभी इसको समझाने के लिए पेनी स्टॉक्स बेस है कि भाई अदानी का स्टॉक ले लिया, रुचि सोया का स्टॉक ले लिया। रुचि सोया में पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना इज रिस्की। आपको पता नहीं है कौन सी कंपनी आगे चल के मल्टी बैगर होने वाली है, 500 में से एक कंपनी सक्सेसफुल होती है। तो इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक्स इज रिस्की एंड बिटकॉइन इज हियर ग्रेटर रिस्क। यू शुड बी ओके टू लूज एवरीथिंग। Okay, sir. So when do you expect Bitcoin will be normalized? Next 50 years, maybe no, 50 or less than 50. उसके लिए पहले तो आई वुड हैव टू मेक अ पेटिशन कि इलॉन मस्क को बैन कर दो बिटकॉइन के बारे में बोलने से। देन आई वुड मतलब
ऐसे जो सेशंस हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, मोर एंड मोर पीपल शुड नो अबाउट इट वंस, मतलब जितना सबको रुपए के बारे में पता है, जब उतना ही नॉर्मलाइज हो जाएगा। बिटकॉइन के बारे में पता चल जाएगी, देन इट वुड बी इजी टू राइड आउट दैट वॉलेटिलिटी। मतलब हमें ही एफर्ट्स करना पड़ेंगे ना उसको नॉर्मल करने के लिए और उसको वापस डेफिनेटली नॉर्मलाइज करने के लिए। No, when you hear your parents talking about cryptocurrency, it is time Yes. that you should consider that it's normal. Exactly. Just like equity market. yes yes हाँ, अभी इक्विटी मार्केट ही कॉमन नहीं है। म्यूचुअल See, फंड the reason ये हर्ष ने जो एग्जांपल दिया, यूएस मार्केट्स में अगर आपको 15% 20% कमा रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली नियर टू इम्पॉसिबल टास्क। मतलब हम रिटेल इन्वेस्टर्स को 15 to 20% कमाना इन यूएस मार्केट्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को विथ नो टू लिटल नॉलेज अबाउट स्टॉक्स, इट इज डिफिकल्ट। बट वही बात अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में करते हैं, इट इज रिलेटिवली लो, वो डिफिकल्टी कम है। वाई? बिकॉज यूएस में ज्यादातर लोगों को पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, बट सिमिलरली इन इंडिया पीपल डोंट नो अबाउट इट, ओनली अ फ्यू। अभी जो बुल रन आया है, इट इज बिकॉज एवरीबडी इज नोइंग अबाउट इट, एवरीबडी सब शुरू कर रहे हैं। द रीजन अब स्टॉक सबके पास है, ज़ेरोधा सबके पास है, तो इट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी, एंड वंस इट गेन्स पॉपुलैरिटी, सब लोगों को पता चल गया, उसके बाद इट वुड बी डिफिकल्ट टू अर्न रिटर्न्स। सो सिमिलरली बिटकॉइन में भी वही चीज है। Anyone else? किसी को कोई सवाल? Yes, there is a Sir, question in chat box. Chat box. Yes. Okay, just Also, along with crypto, please suggest for stock market as well. स्टॉक मार्केट्स का सेशन थोड़ी है यहाँ पर यार। फिर भी मतलब कमिंग बाद में आता हूँ। अकॉर्डिंग टू यू विच एप्लीकेशन इज बेस्ट फॉर ट्रेडिंग क्रिप्टो? इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, कॉइन स्विच इज बेटर, क्योंकि वो उसमें ज़्यादातर कुछ मगजमारी नहीं है। इन्वेस्ट करना है, कॉइन स्विच इज बेटर। बट इफ़ यू वांट टू ट्रेड, वजीरेक्स एंड बाइनेंस, जो तीन ही मेजर है, वजीरेक्स, बाइनेंस, कॉइन स्विच। बाकी नया जो आया है वो कॉइन, आई गेस Coin DCX। तो वो दे आर लिटिल बाय लिटिल वो आ रहा है पॉपुलैरिटी में, लेकिन फॉर टू ट्रेड बाइनेंस एंड वजीरेक्स इज बेटर, बिकॉज ट्रेडिंग रिक्वायर्स मार्जिन, राइट? तो मार्जिन के लिए बाइनेंस मार्जिन देते थे आपको। वजीरेक्स भी बाइनेंस की ही ओनरशिप में है, बट वजीरेक्स इज इंडियन। सो to invest, coin switch; to trade, Wazirex and Binance. What were you saying, Krina? What were you asking? She was saying that please also recommend some stocks. She was talking about some stocks. application for stock as well, stock market as well. बिटकॉइन पे तो अभी जाएंगे नहीं ना, आपने मना बोला। योर फिनमेन का स्टॉक ले लो। श्योर। बस, और तो कौन स्टॉक दूंगा मैं? I don't give stock advisory. Okay. Any question? Any? So we can conclude, right? बस इतना समझ में आ गया सब कुछ। मुझे एक और I don't क्वेश्चन था। think परफेक्टली समझाया मैंने। नहीं, एक क्वेश्चन था जो आपने बोला ना, ब्लॉकचेन में फॉल्स जो ट्रांजैक्शन होता है, तो का थोड़ा मतलब जैसे बोला फॉल्स ट्रांजैक्शन। Shrey, there is a question in message. हाँ, वो देखा मैंने, ध्रुव, राइट? हाँ, एज अ सीएफपी व्हाट इज योर टेक कि गवर्नमेंट को बीएसई एंड एनएसई के जैसे बिटकॉइन के लिए भी बॉडी फॉर्म करनी चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सेबी जो है, सेबी
वो माई बाप है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो रिटेलर के माई बाप है, सबका ध्यान रखिए। तो सेबी ओवरटेक्स एनी ओवरसीज एवरीथिंग दैट रिक्वायर्स मनी। स्टॉक्स है सेबी, बॉन्ड्स है सेबी, अभी स्पेक्स जो आ रहे हैं, स्पेक्स इज ब्लैंक चेक कंपनीज, तो वो भी सेबी। तो एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी इन द इंडियन मार्केट्स सेबी ओवरसीज है। तो आई थिंक जब भी क्रिप्टो करेंसीज भी अप्रूव हो जाएगी तो सेबी वुड बी गिवन द टास्क टू ओवरसी द मार्केट्स। Yes, और Karina was saying हाँ हाँ something. False. Karina. How do they catch the Okay, false okay. transaction? थोड़ी इसमें थोड़ी Okay, क्लैरिटी चाहिए। ओके सो जैसे मैंने कहा ब्लॉक्स बनते जा रहे एक के बाद एक। The number of transactions in seconds as Bitcoin comes into circulation more and more, जैसे लोगों को पता चल रहा है बिटकॉइन के बारे में, the circulation and the number of transactions within seconds keeps on increasing, मतलब एक ही सेकंड में बहुत सारे transactions रिकॉर्ड हो रहे हैं। Now for someone to check कि कोई कुछ गलत नहीं है, तो miners, number of miners on the blockchain technology are numerous, हजार, lakh, crore, there's no number, specific number, there are n and n number of miners on the blockchain जो हर एक transactions को oversee करते हैं। It is a race कि कौन सबसे पहले ये transaction verify कर रहा है। It is a race, मतलब सब लोग participate करेंगे, जीते भले कोई एक, लेकिन सब लोग participate कर रहे हैं। तो everybody is aware about that one particular transaction, सबको वो transaction गए हैं, तो that would mean कि कुछ तो सही होगा, गलत तो हो नहीं सका। अगर कोई एक कर रहा है चेंज, अगर कोई एक स्पेसिफिक चेंज कर रहा है, तो उस एक को ही पता है कि मैं चेंज कर रहा हूँ, बाकी और जैसे ही उसने चेंज किया देन इट वुड शो एवरी अदर ब्लॉक इन रेड कि मैंने कहा कि कोई चेंज कर रहा है, उस ब्लॉक की आईडी बदल गई, उसके नेक्स्ट वाले ब्लॉक की आईडी बदल गई, उसके नेक्स्ट वाले ब्लॉक की आईडी बदल गई एंड सो ऑन। तो एक ब्लॉक में कुछ बदल किया तो नेक्स्ट ब्लॉक भी पूरी की पूरी ब्लॉक चेन नलिफाई हो जाएगी। अभी एक ब्लॉक ऊपर सबके पास कॉपीज है, राइट। बेसिकली लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम सब के बीच में एक जॉइंट अकाउंट है, राइट। हम सब के पास एक जॉइंट अकाउंट है, वी एवरीबॉडी हु इज इन द सेशन हैज अ बैंक अकाउंट। अभी अगर मैं ट्रांजैक्ट कर रहा हूँ तो आप जब भी पासबुक डाउनलोड करोगे, आप जब भी पासबुक अप्लाई करोगे, तब आपके भी पासबुक में वो ट्रांजैक्शन आ जाएगा कि भाई श्रेयांश ने 1000 रुपये विड्रॉ किए। तो करीना वुड नो, हर्ष वुड नो, खुशी वुड नो, श्रेय वुड नो, एवरीबडी वुड नो कि सब मैंने 1000 रुपये लिए। तो अगर मैं लेट से हर्ष को अपनी साइड कर लूँ कि भाई हर्ष तू ऐसा बता देना कि श्रेयांश ने विड्रॉ नहीं किया 1000 रुपये, कुछ नहीं हुआ, कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, बट फॉर मी टू सक्सेसफुली फ्रॉड एवरीवन, मुझे सबको मनाना पड़ेगा कि भाई मैंने ले लिया लेकिन तू बोलना मत को, एंड दैट इज इम्पॉसिबल। तो ब्लॉकचेन में भी सेम वही होता है कि एक ब्लॉक पे जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं वो सबके पास जाते हैं, और अगर किसी को फ्रॉड करना है तो दैट वुड मीन कि उसको सबके कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा, सबके कंप्यूटर्स में जाके सब में ट्रांजैक्शंस को चेंज करना पड़ेगा, एंड while there are hundreds of transactions going on in seconds, so that is impossible. Thank you so much. I think अभी किसी को question है? Well, Okay, so I would like to conclude. So on the behalf of our group, the Mudra Club, the Finance Club of DPPG, BK School, we would like to extend a vote of thanks to Mr. Shreyansh Shah. It was really a good session. Thank you so much for taking out time from your busy schedule. It was really informative, and thank you so much for your sharing your invaluable knowledge. And also thanks to our audience for being there, being patient with us, thank for you being there. मैं कितने And 7 बज गए, it was the schedule कि 1 घंटे में खत्म करना है, yes, बट पॉसिबल ही नहीं है, मैंने सिर्फ टच किया, लेकिन फिर भी I would
मैं ऐसा मान रहा हूँ सबको समझ में आ गया, और किसी को तो कुछ बाकी नहीं रहा, राइट? सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया? Yes, it was actually very sorted, काफी sorted था, मतलब थोड़ा simplify करके काफी अच्छे से Thank- समझाया, so thank you so much. Thank you. Also, thank you for joining. yes. And once this session ends, please tag me, please tag your friendman and share your feedbacks with us. It would Sure. help कि अगर आगे चल के हमको कुछ changes करने, कुछ feedbacks है, जो कुछ suggestions है, तो it would help us very. So please आपके feedback जरूर देना हमें. Okay, thank you so much. Our Instagram handle is your friendman. Sure, sure. I would like to put your cameras on so we can capture the moment. Everyone. हर्ष तू भी कर, आप भी कर लो प्लीज. हर्ष, everyone please. Sana. Let me also take a snap. Just a minute. Yes, so everybody is there. You can take picture if you want. Yes, I think Shrey is किसी को taking. नहीं, done. It's done. Virtual group photo, yes. Okay. Thank you everyone for Thank you joining. so much. Thank you so much. Thank you, sir, Harsh. so much. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. Welcome. Thank you, sir. अरे सर. Okay. Bye. के लिए सर, Okay. Sorry. Bye. Thank you so much. आज के लिए सर है सर. Okay. कल के लिए फिर. हाँ, आज के लिए सर. Okay, ठीक है. Bye. Thank you so much.